hardline Islamist cleric in Bangladesh, Jasimuddin Rahmani, head of Ansarullah Bangla team, spewing venom against India, calling for jihad for Jammu and Kashmir. Rahmani was released from prison on the instructions of the Nobel laureate Professor Muhammad Yunus government's order after the ouster of Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina. Rahmani also appealed to Mamata Banerjee to declare independence from India. Rahmani's radical Islamist outfit, Ansarullah Bangla team, is linked to the banned terrorist organization Al-Qaeda and preaches the formation of an Islamic state. In his speech, Rahmani gave a 5-point action plan to break India. Support Khalistan terror. Jihad for freedom of Jammu and Kashmir. Ask Mamata Banerjee to declare independence. Calls to cut off Shiliguri corridor. Raise Islamist flag on Red Fort in Delhi. Rahmani was locked up in the high-security Qasimpur prison in Bangladesh for abetting the murder of a blogger in Bangladesh in 2013. He has been accused of ordering the killing of several atheist bloggers in Bangladesh between 2013 and 2016. हसीना सरकार के जाने के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं और अब ये क्लियर हो गया है कि बांग्लादेश पूरे तरीके से इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के कंट्रोल में है। अब वहाँ आतंकवादियों पर कोई रोक नहीं है और वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं भारत को, भारत के टुकड़े करने की, भारत से खालिस्तान, कश्मीर और इवन नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं इसका नाम है मोहम्मद जसीमुद्दीन रहमानी और ये बांग्लादेश की एक रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का चीफ है। ये अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी एफिलिएटेड है अल-कायदा से। ये आतंकवादी पिछले काफी सालों से जेल में था और जब शेख हसीना की सरकार गिरी और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर बने तो इस आतंकवादी को रिलीज कर दिया गया और अब बांग्लादेश का ये आतंकवादी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से कह रहा है कि मोदी रूल से बंगाल की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दो। है ना शॉकिंग न्यूज। अब ये हाल होने वाला है बांग्लादेश का। बांग्लादेश विल बी नेक्स्ट पाकिस्तान। जसीमुद्दीन रहमानी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और ये है वो वीडियो और इस वीडियो में एबीटी का चीफ भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा है और साथ ही ये भी कह रहा है कि हम अपना इस्लामिस्ट झंडा एक दिन दिल्ली में फहराएंगे। बांग्लादेश सिक्किम भूटान नয়, बांग्लादेश 18 কোটি মুসলিম জনতার তাওহীদি জনতার দেশ। এই দেশ একটি মসজিদ, এটা আমাদের পবিত্র ভূমি। এদিকে যদি চোখ তুলে তাকাও সে চোখ উপড়ে ফেলা হবে, এদিকে যদি পা বাড়াও সে পা ভেঙে দেওয়া হবে, এদিকে হাত বাড়াও হাত কেটে দেওয়া হবে। যদি বাংলাদেশের দিকে এক পা বাড়াও আমরা 7 সিস্টারকে বলে দেবো, চায়নাকে বলে দেবো চিকেন নেক বন্ধ করে দাও। 7 সিস্টারকে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো। কাশ্মীরকে বলবো তোমরা স্বাধীনতার জন্য তৈরি হও। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैं कहता हूं कि तुम कश्मीर के साथ मदद करो, कश्मीर के आजादी के लिए काम करो। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জিকে বলবো আপনি বাংলাকে মোদির রাজত্ব থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করুন। এভাবে ভারতের প্রত্যেকটা প্রদেশ খালিস্তানি সেই শিখদেরকে বলবো তোমাদের সময় এসেছে, এখনই তোমরা স্বাধীনতার ডাক দাও। সারা অঞ্চল থেকে এই হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়ে ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে ইনশাআল্লাহ এই তাওহীদি জনতা দিল্লির মসনদ পর্যন্ত আবার দখল করবে। সুতরাং আমি ভারতকে জানা বলবো বাংলাদেশকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, জসিমউদ্দিন রহমানিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। জসিমউদ্দিন রহমানি কোনো জঙ্গি নয়, তোমরা তাকে জঙ্গি বানিয়েছো, তওবা করো। हालांकि इस वीडियो को वेरीफाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट में लिखा है कि इंडिया टुडे ने इस वीडियो को एक ढाका बेस्ड फैक्ट चेकर से कंफर्म किया है और उसने कहा ये वीडियो जेन्युइन है। ये वीडियो शूट किया गया सितंबर के फर्स्ट वीक में, क्योंकि इसमें रहमानी 1 मंथ ऑफ रिवॉल्यूशन का जिक्र कर रहा है, वो रिवॉल्यूशन जिसमें शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका बांग्लादेशियों ने। ये जसीमुद्दीन रहमानी जाना जाता है अपने इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट व्यूज के लिए। इसके पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी लिंक है और अल-कायदा से भी। ये न सिर्फ वेस्ट बंगाल को भारत से अलग करने की बात कर रहा है, साथ ही पूरे भारत में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाने की कॉल दे रहा है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर को कह रहा है कि आप मोदी रूल से आजाद हो जाओ और साथ ही भारत को वार्निंग दे रहा है कि अगर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी एग्रेसिव एक्शन लिया
तो भारत को परिणाम भुगतने होंगे। ये कह रहा है कि बांग्लादेश सिक्किम या भूटान नहीं है। बांग्लादेश 18 करोड़ मुस्लिम लोगों का देश है और बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी कदम भारत को भारी पड़ेगा। साथ ही आदमी कह रहा है कि अगर भारत का बांग्लादेश से कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हम चाइना की मदद लेकर भारत के नॉर्थ ईस्ट के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद करके पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे। और साथ ही 7 सिस्टर्स से कहेंगे, 7 सिस्टर्स यानी हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट कि वो भी हमारे साथ फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन करें। देखिए चिकन नेक कहा जाता है इसको, यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। ये जो कॉरिडोर है ये एग्जैक्टली यहाँ पर सिर्फ 20-22 किलोमीटर चौड़ा है और इसीलिए भारत को हमेशा एक कंसर्न रहता है कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चाइना कभी भी इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भारत का अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्शन बिल्कुल कट जाएगा। और ये रहमानी इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को बंद करने की बात कर रहा है चाइना की मदद से। कश्मीर को लेकर रहमानी कह रहा है कि टेल कश्मीर टू गेट रेडी फॉर द फ्रीडम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मिलकर कश्मीर को इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद करेंगे। हम कश्मीर की फ्रीडम के लिए काम करेंगे। साथ ही वो सिखों से कह रहा है कि आई विल टेल द सिख, आप लोग का वक्त आ गया है, आप फ्रीडम के लिए कॉल दीजिए। वो सिख जो खालिस्तानी है भारत के हर स्टेट में, आप लोग का टाइम आ चुका है। अब सोचिए बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने से ये लोग क्या क्या सपने देख रहे हैं और इन लोगों की क्या मेंटेलिटी है भारत के लिए। भारत जो बांग्लादेश के लिए इतना कुछ करता है, इन लोगों को देखकर समझ में आता है कि बांग्लादेश अब किस तरफ जाने वाला है। रहमानी की जो ऑर्गेनाइजेशन है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी ABT, शेख हसीना ने इसको बैन कर दिया था। ये रहमानी ढाका की एक मस्जिद में इमाम था और वहाँ पर हर फ्राइडे को उपदेश दिया करता था। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रहमानी के अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के जो मेंबर्स हैं वो आते हैं इस्लामी छात्र शिविर से, जो जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग है। इसने कुछ मैनुअल्स भी लिखे हैं और जिसमें क्लियरली वकालत करता है कि जो भी व्यक्ति इस्लाम के या प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ है उसे मार दो। इसके उपदेशों को सुनकर उसकी किताबों को पढ़कर ही बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स ने बांग्लादेश के कई एथीस्ट ब्लॉगर्स की हत्या की। 2013 से लेकर 2016 के बीच बांग्लादेश में कई ब्लॉगर्स मारे गए और उनमें से कुछ हैं अभिजीत रॉय, कासिकुर रहमान बाबू, अनंता बिजोय दास और AKM इस्लाम, जो बांग्लादेश की राजशाही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। 2016 में बांग्लादेश के एक कोर्ट ने रहमानी और उसके 8 साथियों को, जो ABT के मेंबर्स थे, बांग्लादेश में आम जिहाद के लिए दोषी माना था। ये व्यक्ति भारत के लिए एक सीरियस थ्रेट है क्योंकि इसके अलकायदा से भी कनेक्शन है और पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी। ये भारत में भी एक जिहादी नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ दिनों असम में भी ABT के कुछ टेररिस्ट पकड़े गए हैं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट का कहना है कि ABT के पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा से काफी क्लोज कनेक्शन है और ABT भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। और बांग्लादेश ने ऐसे आतंकवादी को रिलीज कर दिया है जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है।